Start in the name of Allah, who is merciful and most beneficent. Dear students, today we are going to discuss Renaissance humanism. Humanism is a term applied to a social philosophy that flourished in Europe during the period from 1400 to 1650. It was inspired by return of pagan classics, the philosophy of secularism, and the appreciation of worldly pleasure. Above all, it laid great emphasis on personal independence and individual expression. There was a zeal for the classic and secular way of life. Money making and physical pleasure were no more a sin. Yes, as per the topic Renaissance and humanism, so this point is revolving around our topic. He is saying money making and physical pleasures were no more a sin. Yes, money making and फिज़िकल प्लेयर, दीज आर द टू थिंग्स, और इन्हीं दो चीज़ों के ऊपर जो है वो ह्यूमनिज़म और रिनाइसेंस और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो रिवॉल्व करती हैं कि एक पैसा और दूसरी प्लेयर. अब यहाँ पे डिफरेंस है, कहता है फ़िज़िकल प्लेयर और साथ साथ कहता है मनी. अब देखें मनी मेकिंग वो जिस तरह की भी हो, वो कहता है कि दैट इज़ नॉट अ सिन, दैट इज़ नॉट अ सिन, चाहे वो लीगल हो चाहे वो इलीगल हो. जैसे भी आप मनी मेकिंग इज़ अ टर्म, आप जैसे भी मनी मेक कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट द कंसर्न, बट द कंसर्न इज़ दैट यू हैव टू मेक मनी. आइदर द प्लेयर, आइदर इट्स फिजिकल प्लेयर, आइदर इट्स समथिंग एल्स, आइदर इट्स लीगल और illegal, it doesn't matter, but the matter which thing is matter, that is pleasure. Rather, expansion of trade, growth of prosperity generated interest in luxury and worldly pleasure. Yes, जब इस तरह की चीज़ें होंगी कि एक मनी मेकिंग और दूसरा फिज़िकल प्लेयर, तो उसमें फिर जो अपर क्लास है या लोअर क्लास है उसका डिफरेंस जो है वो नहीं रहता. उसमें आपका कंसर्न सिर्फ वो क्या है, मनी मेकिंग है या फिर फ़िज़िकल प्लेयर. वो जैसे भी आप हासिल करें, चाहे वो आपका इंट्रैक्शन के थ्रू हो, चाहे वो आपका सेक्स के थ्रू हो, चाहे रोमांस के थ्रू हो, चाहे किसी और टर्म के थ्रू हो, दैट डजंट मैटर. ठीक है, चाहे वो प्रॉस्टिट्यूट हो, दैट डजंट मैटर. चाहे वो एक बंदा जो सुबह से लेकर शाम तक काम करता हो, दैट डजंट मैटर. बट द कंसर्न इज़ मनी मेकिंग एंड फिज़िकल प्लेयर. The humanists welcomed classical writers who revealed similar social values and secular attitudes. Historians are pretty much agreed on the general outlines of those mental attitude and scholarly interests which are assembled under the title of humanism. The most fundamental point of agreement is that the humanist mentality stood at a point midway between medieval religiosity and the modern scientific and critical attitude. Yes, now the concern is, two concerns are there, but the thing which are going to be deal here, that is medieval religion and as well as modern scientific tradition. अब आपको जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल दी, एक बंदा सुबह से लेकर शाम तक काम करता है और वो बेचारा मजदूरी करता है, भट्टे पे काम करता है. उसका भी मकसद क्या है, पैसा बनाना, और साथ साथ उस पैसे से जो आउटकम है उससे उसका क्या मकसद है, खुशी हासिल करना. वो किसके लिए हासिल करना, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए. ऑन द अदर हैंड एक बंदा मोटरसाइकिल पे जाता है, गन पॉइंट पे पैसे खींचता है, उसका भी मकसद क्या है, मनी मेकिंग है. एंड द अदर थिंग, जब वो ये कर लेता है उसका मकसद क्या है, प्लेयर, चाहे वो जिस टर्म में भी हो. मॉडर्न हिस्टोरियंस आर परहैप्स more apt to view humanism as the germinal period of modernism. As the grip of medieval religiosity began to diminish, secular and human interests become more prominent. The facts of individual experience in here and now become more interesting than the shady afterlife. Reliance upon faith and God weakened. The present world become an end in itself instead of simply preparation of world to come. Yes, जहाँ पे वो कहता है कि ये दो चीज़ें होती हैं, जहाँ पे प्लेयर है और उसके साथ साथ मनी मेकिंग है, फिर आप किसके ऊपर फोकस करते हैं, इंडिविजुअलिटी के ऊपर. जब आपका कंसर्न है सिर्फ पैसा बनाना, तो तब आपको दूसरे बंदे नज़र नहीं आएंगे. आपका मकसद अगर फ़िज़िकल प्लेयर हासिल करना है, तो तब आपको ख़ानदान की इज़्ज़त का पता नहीं होगा. तब जब आपको पता है कि यस
आई हैव टू मेक मनी। फिर आपके अपने कंसर्न, इंडिविजुअलिटी के कंसर्न क्या होते हैं, पहले होते हैं। अब वो इंडिविजुअलिटी के कंसर्न डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसको डील करते हैं, दैट इज़ सेकेंड पॉइंट। वो आपकी फैमिली को मीट करते हैं, वो आपकी सोसाइटी को मीट करते हैं, किस चीज़ को मीट करते हैं, दिस इज़ अनदर थिंग, बट द फर्स्ट कंसर्न इज़ इंडिविजुअलिटी। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आप में से किसी का मकसद पैसा बनाना और फिज़िकल प्लेयर हासिल करना है, तो उसका सबसे पहले प्रायोरिटी क्या होगी, खुद होगा वो। ठीक है, उसके बाद उसके बाकी सराउंडिंग में रहने वाले लोग, उसके कफालत में रहने वाले लोग, उसकी सोसाइटी के लोग बाद में आएंगे। फर्स्ट विल बी द इंडिविजुअलिटी। Beauty was believed to afford at loss at least some glimpse of existence. This makes plain that humanism was above everything else. Fundamentally an aesthetic movement, human experience, man himself tending to become the practical measure of all things. The ideal life was no longer a monastic escape from society, but a full participation in rich and varied human relationship. Yes, यहाँ पे वो कहता है कि जब आइडियल लाइफ जो है वो फिर ख़त्म हो जाती है, फिर जब आप क्या कहते हैं, आपके कंसर्न हो पैसा बनाना, आपका कंसर्न हो खुशी हासिल करना, फिर आइडियल लाइफ नहीं रहती। फिर आपका सिर्फ एक ही काम होता है, पकड़ धकड़ करो, पैसा कैसे बनाना है, आपने खुश कैसे रहना है। फिर आपकी लाइफ जो है वो आइडियल नहीं रहती। आइडियल लाइफ तब होती है जब आप क्या करते हैं, विद इन अ डायाफ्रेम, विद इन अ फ्रेमवर्क आप काम करते हैं, और विद इन रिस्ट्रिक्शन, विद इन आप प्रॉपर किसके ऊपर, एक आपके पास टाइम फ्रेम होता है, एक प्रॉपर आपके पास आउटलाइन होती है जिसके ऊपर आप अमल करते हैं। फिर उसके ऊपर अमल करने के बाद आप क्या बन जाते हैं, आइडियल बन जाते हैं। ठीक है, बट जहाँ पे आपके कंसर्न ही कुछ और हो, वहाँ पे आप आइडियल नहीं रह सकते। इसके बाद है द डोमिनेटिंग एलिमेंट इन द फाइनेस्ट क्लासिकल कल्चर वाज एस्थेटिक रेदर देन सुपरनेचुरल और साइंटिफिक। इन द मिडल एजेस urban intellectuals were all on the road to recovery of an aesthetic and secular view of life. Even before the full tide of classical revival was felt, it was only natural then that pagan accelerate that existing drift toward secularism and stimulate the cult of humanity, the worship of beauty and especially the aristocratic attitude. Yes, कहता है कि जब पुराने दौर में था ह्यूमनिज़म की अगर हम बात करें तो वो क्या थी, वो ट्रेडिशनल थी। पुराने दौरों में आप देखें ख़ानदान में भी रख रखाव था, ख़ानदान में बड़ों की बातें भी मानी जाती थी। ठीक है, एक नाम होता था, चीज़ों को समझा जाता था, अप्स एंड डाउन को देखा जाता था। लेकिन आजकल मॉडर्न एज में ऐसी कोई बात नहीं। आजकल ह्यूमनिज़म तो एक साइड पे रख लें, आजकल तो इंसान की भी कदर व कीमत नहीं है। आप इंसान की जान की कीमत ही नहीं है। ऑन द अदर हैंड इस्लाम क्या कहता है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। और हमारे यहाँ देखें कि हम दिन दहाड़े जस्ट फॉर द सेक ऑफ सम सॉर्ट ऑफ रुपीज़ और यू कैन से हम चंद रुपयों की खातिर किसी के ऊपर क्या कर देते हैं, बंदूक तान देते हैं। अगर वो चीज़ ना मिले तो हम उसको उड़ा दें। CCTV फुटेज अक्सर आते रहते हैं, आप देखते हैं कि वो अगर उसने आगे से कोई बदतमीज़ी की या कुछ किया तो उसको फड़का दिया, उसकी चीज़ें लेके चला गया। So this is the modernism as well as humanism is something else, but in modernism humanism का दूर दूर तक हमें कोई ताल्लुक़ नज़र नहीं आता। उसके बाद है the intellectuals of antiquity is contrast to the Christian were relatively unconcerned about the supernatural world and the internal destiny of the soul. They were primarily interested in a happy, advocate and efficient life here on earth. Yes, अगर हम मजहबी लिहाज से देखें तो इंसानियत का ज़्यादा कंसर्न बनता है, ह्यूमनिज़म का ज़्यादा कंसर्न बनता था। अगर हम क्रिश्चियनिटी के नज़र से देखें, इंग्लिश लिटरेचर की नज़र में देखें तो वो लोग मज़हब को ज़्यादा मानते थे, वो लोग मज़हब के ऊपर चल के इंसानियत की ज़्यादा कदर करते थे। अगर हम इस्लाम के अंदर आके देखें तो इस्लाम ने भी लोगों को एक दूसरे की इज़्ज़त करने सिखाया है। इस्लाम इतना परफेक्ट दीन है जिसने तो इवन के ये कहा है कि आपके हाथ, इवन कि आपकी ज़बान से भी दूसरा जो है वो हर्ट ना हो। हाथ तो दूर की बात, बहुत पीछे चला गया। इवन के इस्लाम तो कहता है कि आपकी ज़बान से भी किसी को कोई नुकसान ना पहुँचे। तो हमें ये पता चला कि ह्यूमनिज़म का कंसर्न जो वो ज़्यादा था वो मिडल एजेस में था, वो रिनाइंसेस में था, वो पुरानी एजेस में था, वो क्रिश्चियनिटी के साथ था, वो बुद्धिज़्म के साथ था, वो इस्लाम के साथ था। बट मॉडर्निज़म में ह्यूमनिज़म का दूर दूर तक कोई कंसर्न हमें नज़र नहीं आता।
इसके बाद बताता है इंडिविजुअलिज्म एंड द इंस्टिंक्ट ऑफ क्यूरियोसिटी वर्गसली कल्टिवेटेड हॉनेस्ट डाउट बिगन टू रिप्लेस unreasoning faith. The skeptical viewpoint proposed by finally the spirit of individualism to a certain degree incited the Protestant revolt, which in the theory of least embodied a through of application of the principle of individualism in religion. Yes, आपको याद होगा हमने जब हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के अर्ली लेक्चर हमने स्टार्ट किए तो आपको बताया था कि क्रिश्चियनिटी के अंदर दो एस्पेक्ट पाए जाते हैं, एक प्रोटेस्टेंट, दूसरे कैथोलिक, जो कि अब वहाँ पे भी थोड़ा सा अगर देखें वो बेसिकली हमें ये बताना चाह रहा है कि अगर इस्लामिक पॉइंट, अगर मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनके दरमियान इख्तलाफ था, लेकिन ह्यूमनिज़म के ऊपर किसी किस्म का कोई उनका इख्तलाफ नहीं था. दे वर इक्वल ऑन वन पेज. चाहे उनके मजहबी इख्तलाफात हो सकते हैं, जैसा कि आजकल हमारी सोसाइटी में है, शिया सुन्नी के तजाद तो हो सकते हैं, लेकिन ह्यूमनिज़म के ऊपर किसी का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता. सेम इज़ द केस विद द Christianity as well as with the Protestant and Catholic. It need not to be supposed that the emancipation of the ego was wholly beneficial of the human race, yet the aspect of humanism which combined the sovereignty of Trent, feudal lord class cooperation and traditional had a tremendous influence upon the subsequent history of Europe. Indeed, it was during the humanist era that the freedom of individual expression and opposition to authority was first brought to the surface and became an integral part of the Western intellectual tradition. Yes, इसी के साथ साथ वो बताता है कि वेस्टर्न ट्रेडिशन को भी अगर हम देखें तो हमें आज हमसे वेस्ट वाले आगे क्यों हैं, मॉरली हमसे आगे क्यों हैं? दे डील विद ह्यूमनिज़म. उनकी नज़र में पैसा बाद में, उनकी नज़र में इंसानियत पहले है. हम ऑन द अदर हैंड मुस्लिम, सो कॉल्ड मुस्लिम हो के हमारे कंसर्न जो हैं वो कुछ और हैं. हमारी नज़र में वही बात हुई जो हमने पहले शुरू में स्टार्ट की. 2 पॉइंट हमारी नज़र में फ़िज़िकल प्लेयर एंड मनी मेकिंग आज भी प्रायोरिटी पे खड़े हैं, और हमारी नज़र में ह्यूमनिज़म आज भी कहीं कोसों दूर है. तो इसी के साथ हम इस चीज़ के ऊपर कंक्लूड कर रहे हैं कि जो आज से काफ़ी अर्सा पहले हालात थे, रिनाइंसेंस के अंदर अगर हालात थे या उसके बाद वाले दिनों में हालात थे, वो उनकी झलक आज भी इस दौर में क्या है हमें देखने को मिलती है. इन द टर्म ऑफ जहाँ पे इंसानियत के हकूक़ क्या हो रहे थे, पामाल हो रहे थे, जहाँ पे मिडिल क्लासेस और लोअर क्लासेस और अपर क्लासेस का क्या था, बहुत ज़्यादा डिफरेंस था. आज भी अगर आप देखें वो सेम कंडीशन हमारे एरा में पाई जाती है कि हमारे अपर क्लास की लाइफ सेटिंग्स और हैं, उनके मरने मराने के तरीके और हैं, उनकी खुशी करने के तरीके और हैं, मिडिल क्लास के भी और हैं, लोअर क्लास के भी और हैं. इवन कि हमारा उनमें आना जाना भी वो भी डिफरेंस है बहुत ज़्यादा. कि हमारे यहाँ अगर महल्ले में किसी बड़े बंदे की फौतगी हो जाए तो हम अपने सारे काम काज छोड़ के हम जाते हैं कि सरदार साहब के पास हमने जाना है. और अगर हमारे महल्ले में एक गरीब मज़दूर जो भट्टे पे काम करता है या रेडी चलाता है, उसके यहाँ अगर कोई मिसहैप हुआ है तो हम जाना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि उसके नाम की एग्जिस्टेंस हमारी सोसाइटी कबूल ही नहीं करती ऑन ह्यूमैनिटी ग्राउंड. दैट्स ऑल.